کراچی سے خیبر تک کے احوال میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ٹرین اور کار میں تصادم، ایک شخص جاں بحق، گاڑی مکمل تباہ ہو گئی۔ حادثہ ریلوے پھاٹک نہ ہونے کے باعث پیش آیا۔ شاہکوٹ میں مضر صحت دودھ پینے سے 3 خواتین سمیت 6 افراد بے ہوش ہو گئے۔ حالت غیر ہونے پر ڈسٹرکٹ اسپتال شیخوپورہ ریفر کر دیا گیا۔ بجلی کی لٹکتی تاروں نے گندم کا کھیت راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ خانقاہ ڈوگرہ میں زمیندار نے ایس ڈی او کے خلاف مقدمے کی درخواست دے دی۔ وارڈ میں جانے کی اجازت کیوں نہ دی؟ گجرانوالہ کا ڈی ایچ کیو اسپتال میدان جنگ بن گیا۔ سیکیورٹی گارڈز اور مریض کے لواحقین گتھم گتھا ہو گئے۔ بہاولپور میں پراسرار طور پر جاں بحق ہونے والی خاتون کی ہلاکت کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ ماں کا سسرالیوں پر قتل کا الزام، پولیس کی تحقیقات جاری۔ نارنگ منڈی میں بجلی کے طویل لوڈ شیڈنگ، عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز۔ مشتعل شہریوں نے وابڈا کے دفتر کا گھیراؤ کر لیا۔ منڈی بہاؤدین میں رینجرز اکیڈمی کی ریکروٹس پاسنگ آؤٹ پریڈ، 1406 جوانوں نے تربیت مکمل کی۔ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ گجرات کو خوبصورت اور ماڈل سٹی بنانے کے لیے انتظامیہ سرگرم، 1 کروڑ 25 لاکھ روپے کی لاگت کے وال آف گجرات منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا۔ کشمور کی 38 یونین کونسل میں 3 روزہ پولیو مہم آج سے شروع ہو گئی۔ 2,23,104 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ نواب شاہ میں ہونے والے مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو مارے گئے، 3 ساتھی موقع سے فرار، گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ ٹنڈوالہ یار میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کر دیا گیا، بلا تفریق کارروائی کی جائے گی، ٹی ایم اے کا عزم۔ پشاور میں پولیس اہلکار نشانے پر، یکاتوت میں موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے اے ایس آئی کو قتل کر دیا۔ مردان میں شارٹ سرکٹ کے باعث فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی، قریبی دکانیں بھی لپیٹ میں لے لی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کوئٹہ میں وزیر برائے منصوبہ بندی ڈاکٹر حامد اچکزئی کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں بلوچستان کے تمام محکمے ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کے پابند ہیں، جلد فنڈز بھی جاری کیے جائیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صوبہ پنجاب سے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ سے افسوسناک خبر آپ کو دیں گے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ٹرین اور کار میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں کینٹ روڈ پر واقع ریلوے کراسنگ کو عبور کرتے ہوئے کار کراچی سے لاہور آنے والی ٹرین سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں کار سوار محمد عدنان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش کو ضروری کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہی شاہدین کے مطابق حادثہ ریلوے لائن پر پھاٹک نہ ہونے کے باعث پیش آیا۔ حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ ٹرین کار کو 1 کلومیٹر تک گھسیٹتے ہوئے لے آئی۔ حادثے میں انجن کے سامنے لگا ہوا آہنی جنگلہ بھی ٹوٹ گیا، جبکہ ٹرین کسی بڑے حادثے سے بال بال بچ گئی۔ شاہکوٹ میں مضر صحت دودھ پینے سے 3 خواتین سمیت 6 افراد بے ہوش ہو گئے۔ شاہکوٹ کے نواحی علاقہ ماناوالا میں مضر صحت دودھ پینے سے 3 خواتین سمیت 6 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ ذوالفقار علی اور اس کے اہل خانہ نے دودھ پیا، جس کے تھوڑی دیر ہی بعد
तमाम अफराद बेहोश हो गए। इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। इत्तला मिलने पर मुतासर अफराद को रेस्क्यू एहलकारों ने मकामी अस्पताल पहुंचाया, जहां फौरी तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शेखुपुरा रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दूध के नमूने लेकर फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए हैं। खानपुर से खबर शामिल करेंगे। खानपुर में ट्रक ड्राइवर ने कयामत ढा दी। ट्रक ने बच्चों से भरी गाड़ी को टक्कर दे मारी और हादसे में 8 बच्चे जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मजहर नवाज से। जी मजहर नवाज, बताइएगा हादसा कहां पेश आया और बच्चों की हालत कैसी है? जी, ये खानपुर कायदे मिलत बाईपास रोड पर स्कूल वैन और ट्रक में तसादम, जिसके नतीजे में 8 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। जख्मी बच्चों को रेस्क्यू 1112 के जरिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर में लाया गया, जहां पर बच्चों की अभी तक ट्रीटमेंट जारी है। जख्मियों में सारा हुसैन, अरीबा, फैजान, मरियम, हिना, अब्दुल्ला, सुभान, आमिर और मकसूद शामिल है। ये ट्रैफिक हादसा ट्रक ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। ट्रक ड्राइवर ने जो ही ओवरटेक की तो मुखालिफ सिमत से आने वाली स्कूल वैन में जा लगा। डॉक्टर्स के मुताबिक सारा की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जिसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शेख ज़ायद रेफर कर दिया गया। जी अनम, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजहर नवाज, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। लिया का रुख करेंगे। जहरीली मिठाई खाकर जाम भाग होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पुलिस ने छापा मारकर ज़रूरी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री सील कर दी है। तहसील करोड़ लाल असीम के नवाही चक में जहरीली मिठाई खाकर जाम भाग होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब तहकीकात का दायरा कार भी वसी कर दिया गया है। इसी हवाले से DSP करोड़ लाल हुसैन रमीज बुखारी ने थाना फतेहपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पुलिस ने भरपूर कार्रवाई करते हुए चौक आजम से कुर्बान ट्रेडर नामी ज़रूरी अद्वियात बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारकर 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि फैक्ट्री सील कर दी गई है। इस फैक्ट्री में वो ज़रूरी अद्वियात गैर कानूनी तौर पर बनाई जा रही थी, जो इस मिठाई में इस्तेमाल की गई हैं। खानका डोगरा में वापदा की गफलत के बायस जमींदार की लाखों रुपए मालियत की फसल जलकर राख हो गई, जबकि खानका डोगरा के नवाही गांव चक जोकिया में रहमानाबाद फीडर से आने वाली बिजली की तारें इंतहाई नीची हैं। जरी रकबे के ऊपर से गुजरने वाली इन तारों में शॉर्ट सर्किट के बायस चिंगारियां गंदम की फसल पर जा गिरी। देखते ही देखते पूरी फसल आग की लपेट में आ गई। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया, ताहम लाखों रुपए मालियत की गंदम राख के ढेर में तब्दील हो गई। मुतासरा जमींदार का कहना है कि तारों के हवाले से कई बार महकमे को शिकायत भी की गई है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। मुतासरा शख्स ने SDO वाबला समेत महकमे तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी है, जबकि वजीर आला पंजाब से भी गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। सिंध का कश्मीर की 38 यूनियन काउंसिल में 3 रोजा पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई है। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जिला कश्मीर भर के 38 UCs में इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर कश्मीर और DHO की निगरानी में 2,23,104 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के लिए 563 टीमें तश्कील दी गई हैं। पोलियो मुहिम के आज पहले रोज जिला भर में पोलियो वर्कर्स की जानिब से हिफाजती कतरे पिलाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कश्मीर के 38 यूनियन काउंसिल में 41 सुपरवाइजर जबकि डिप्टी कमिश्नर कश्मीर की जानिब से 13 प्लान सुपरवाइजर्स मुकर्रर किए गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कौम अरबों रुपए टैक्स कौमी खजाने में जमा कराती है, लेकिन करप्ट हुक्मरान इन पैसों से अपनी तिजोरियां भरते हैं। पिसे हुए अवाम को अब जागना होगा। वो मीरपुर खास में करप्शन मुकाओ मुल्क बचाओ रैली से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर करप्शन मिटाओ मुल्क बचाओ मार्च मीरपुर खास पहुंच गया, जहां जलसे का एहतमाम किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के जलसे को रुकवाने के लिए पुलिस ने जगह जगह खारदार तारे लगवा दी थी, मगर कारकुनान ने तमाम रुकावटें तोड़कर साबित कर दिया कि सिंध की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। उनका मजीद कहना था कि मीरपुर खास की आवाम इस वक्त सेहत और पीने के साफ पानी से महरूम है। इसके बावजूद इस जुल्म के खिलाफ
खिलाफ खामोश तमाशाई बनी हुई है। यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, थानों में इनकी कोई नहीं सुनता। मार्च के शुरका से डॉक्टर आरिफ अलवी, हलीम आदिल शेख और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। नवाबशाह में होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए, जबकि 3 साथी मौके से फरार हो गए। नवाबशाह में बांधी मोरो लिंक रोड पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। इस दौरान 2 डाकू मौके पर ही हलाक, जबकि 3 साथी फरार हो गए। SHO का कहना है कि बांधी पुलिस थाना की टीम मामूल के गश्त पर थी कि नवाबशाह मोरू रोड पर डाकू एक कार छीनने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 डाकू मौके पर ही हलाक हो गए। तमाम 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। सखर में ज़माने जाहिलियत की याद ताज़ा हो गई। गुर्बत से तंग मां ने अपनी 2 साला बच्ची को दरिया में फेंक दिया। खुद भी मरने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने दोनों की जान बचा ली। दरिया सिंध के करीब सखर की रिहायशी खातून मरियम बीबी ने अपनी 2 साला बच्ची सादिया को अचानक दरिया में फेंक दिया। बाद अज़ां मरियम बीबी ने खुद भी मरने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद अवाम ने मां बेटी को बचा लिया और उन्हें करीबी थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मरियम बीबी को गिरफ्तार कर लिया। अहले इलाका के मुताबिक उनके घर गुर्बत के डेरे थे और इसी से तंग आकर उसने ये इक़दाम उठाया है। टंडोला यार में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मीडिया की जानिब से मुसलसल निशानदही के बाद एंटी एनक्रोचमेंट फोर्स की हरकत में आ गई है। हैदराबाद मीरपुर खास रोड पर कायम तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। एंटी एनक्रोचमेंट के SHO की सरबराही में स्टेशन चौक के मेन हैदराबाद और मीरपुर खास रोड पर कायम तजावुजात को हटाया जा रहा है। कार्रवाई में इंक्रोचमेंट के अफसरान समेत TMA के दीगर अमला भी हिस्सा ले रहा है। इस मौके पर अफसरान का कहना है कि तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन का आगाज किया गया है और इस हवाले से किसी भी किस्म का सियासी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्रवाई से कबल तमाम दुकानदारों और मकानात के मालिकान को अज खुद तजावुजात खत्म करने की हिदायत की गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे गुड्डू में इरीगेशन मुलाजमीन ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए अनोखा एहतजाज किया है। कफन पहनकर नारेबाजी की, इंतजामिया का अलामती जनाजा भी निकाला गया। गुड्डू में इरीगेशन मुलाजमीन ने मरकजी दफ्तर के बाहर मुतालिबात की मंजूरी के लिए कफन पहनकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में शरीक मुलाजमीन ने बाजू पर स्याह पट्टियां बांध रखी थी और स्याह झंडे भी उठा रखे थे। मुजाहरीन ने इरीगेशन सेक्रेटरी के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि उन्होंने 10 मुतालिबात इंतजामिया के सामने रखे थे, लेकिन 6 माह गुजरने के बावजूद एक भी मुतालिबा पूरा नहीं हो सका। मुजाहरीन ने कहा कि उनके मुतालिबात जल्द अज जल्द पूरे किए जाएं, बसूरत दीगर एहतजाज मजीद संगीन कर दिया जाएगा। और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। पेशावर के इलाके यकातूत में मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने फायरिंग करके ASI को कत्ल कर दिया। उधर मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 20 मुश्तबा अफराद धर लिए गए। बुडबेर में मनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस मुकाबला भी हुआ। पेशावर के इलाके यकातूत में नामालूम मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने सफाक कार्रवाई की। वाकया थाना यकातूत के इलाके पंचघट्टा में पेश आया, जहां पर कैसर अली शाह नामी ASI के घर के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करके फरार होने में कामयाब हो गए। फायरिंग की इत्तला पर मुकामी लोग भी मौके पर पहुंच गए और फायरिंग का निशाना बनने वाले पुलिस एहलकार को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, ताहम वो मौके पर ही जाँ भाग हो गया। वाकये की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी हैं और इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। जाँ भाग होने वाले पुलिस एहलकार की लाश खैबर मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई है। पेशावर में वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने मुतासरीन की बहाली के लिए अनोखा एहतजाज किया है। मुजाहरीन ने गवर्नर हाउस के बाहर ढोल की थाप पर रिवायती रक्स किया और नारेबाजी की। पेशावर में शिमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मुतासरीन ऑपरेशन से मुतासरा कबायली अफराद की बहाली के लिए अनोखा एहतजाज किया गया। मुजाहरीन ने गवर्नर हाउस के बाहर ढोल की थाप पर रिवायती रक्स करते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस मौके पर मुजाहरीन ने अपने मुतालिबात के हक में शदीद नारेबाजी भी की। बताएं कि सवाबी में इंसदाद पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है। 3 रोजा मुहिम के दौरान 2 लाख
61,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सवाबी में इंसदादे पोलियो मुहिम आज दूसरे रोज भी जारी रही। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नयाज मोहम्मद के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए 800 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के 2,61,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। डॉक्टर नियाज मोहम्मद ने बताया कि मुहिम के दौरान अमले की हिफाजत के लिए 2,000 से ज्यादा पुलिस के जवान और फौजी तैनात हैं और तमाम इंसदादे पोलियो मराकज की सिक्योरिटी के इंतजाम भी इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं। और अब रुख करेंगे सूबा बलोचिस्तान का।